بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں، ثناء اللہ خان مروت صاحب۔ ثناء اللہ خان مروت صاحب از اے ریناؤڈ مارکیٹ اینالسٹ، اور ان کے کافی ایکوریٹ انالیسس ہوتے ہیں، اینڈ ہی ہیز ریسنٹلی جوائنڈ الفلاح سیکیورٹیز۔ تو آج کے اس سیشن میں ثناء اللہ خان مروت صاحب آپ کو جو مارکیٹ کے ڈائنامکس ہیں اور جو ڈفرینٹ کی لیولز ہیں ڈفرینٹ سٹاکس کے، اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے۔ تمام ویور سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، تاکہ اس میں جو ہم آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی انویسٹمنٹ پلاننگ اور انویسٹمنٹ ڈیسیژن میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو۔ تو اوور ٹو یو ثناء اللہ صاحب، آپ اپنی پلیز انالیسس کو شروع کیجیے۔ تھینک یو۔ جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ عرفان صاحب۔ جیسے آپ کے ساتھ پرانا واسطہ ہے، آپ ایز اے سی ای او عسکری میں تھے اور ہم ایز اے ٹیم پورے تھے، تو وہاں سے ہم یہاں الفلاح سیکیورٹیز جو کہ بینک الفلاح کی سبسڈری ہے، تو انشاءاللہ یہاں پہ ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے کلائنٹس تھے عسکری سیکیورٹیز میں، وہ تقریباً مور دین 80% شفٹ ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی کنٹینیو ہے۔ وہ اپنی پورٹ فولیو جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں، جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اس ویکینڈ تک شفٹ ہو جائیں گے۔ یہ صرف وجہ یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے ہمارے ساتھ کلائنٹس ہیں، ایک فیملی کے ممبرز کی طرح ہی ہمارے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں، بہت شکریہ، جو کہ ابھی آر ڈی اے اکاؤنٹس کے تھرو آ رہے ہیں۔ وہ اپنے اکاؤنٹ تو انہوں نے شفٹ کر دیے ہیں، اور وہ ان کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے، 5-10 منٹ میں ان کا اکاؤنٹ جو ہے نا الفلاح میں آ جاتا ہے، اور نہ کہ اپنے شفٹ کیے ہیں بلکہ اپنے فیملی ممبرز دوسروں کو اور دوستوں کو بھی انہوں نے ریفر کیا، اور ان کو ہم اپنے براڈ کاسٹ میں ایڈ کرتے ہیں، جو کہ ریئل ٹائم میں الرٹس ملتے ہیں۔ ریئل ٹائم اس کو کہتے ہیں کہ جیسے اکثر میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک کسان کی طرح، کہ جب وہ ایک بیج بوتا ہے تو اس کو پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، اس پہ جو ہے وہ ٹریکٹر چلاتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس کے بعد بیج بوتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ بیج بو کے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے اور انتظار کریں کہ فصل خود ہی پکے گی، اور یہ جس طرح اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ جی میں نے تو لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹ، یعنی یہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ لانگ ٹرم اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی پرچیز کر لی اور اس کو ایز اٹ از اسی طرح چھوڑ دیا۔ آج سے میں سال پہلے کہوں گا کہ اگر کسی نے اسی غرض سے کوئی بھی سٹاک کسی بھی سیکٹر کا لیا ہو، اور وہ اب مور دین 40-50% نیچے آ چکے ہیں، تو ایسے لانگ ٹرم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے پراپر سٹاپ لاس لگانے ہوتے ہیں۔ ایک 2-3%، 5% کی ریکوری آسان ہوتی ہے، 50% کے لیے آپ کو پھر سال سال پھر انتظار کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیں، جیسے جیسے ہم گائیڈ کرتے رہتے ہیں اس کو فالو کیا کریں۔ اور عرفان صاحب، جیسے آج کے دن میں جو ٹی آر جی ہم نے ریکمینڈ کیا تھا تقریباً 70-80 روپے پہ، مجھے یاد ہے آپ نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی تمام سننے والوں کے، وہ یوٹیوب پہ آپ کی پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد اب 150 ٹارگیٹ تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے بتایا تھا، وہ اس نے ٹچ کیا اور وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ ہوئی، اور اب آج دوسرا دن ہے کہ لوور لا کے۔ اب آج کے دن میں بھی ہم نے کچھ سٹاپ لاس کے ساتھ بائنگ کا ریکمینڈ کیا، اپنے کلائنٹس کو واٹس ایپ کیا ہوا ہے، وہ ہمارے تمام کلائنٹس کو پتہ ہے کہ کیسے ہم اس کو لے کے چلیں گے اگر یہ لوور لا کو اوپن ہوتے۔ اسی طرح صرف ایک سٹاک نہیں، سب کی اسی طرح کی ہی سٹوری ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کے سی 100 انڈیکس پہ۔ کے سی 100 انڈیکس جیسے پچھلے دنوں سے تقریباً 1-2 ہفتے سے مارکیٹ کا اپ ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور پچھلے 4-5 سیشن سے اس میں کچھ اتنی زیادہ ہم اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ نہیں دیکھ رہے۔ لیکن شارٹ ٹرم میں جیسے آپ سب کلائنٹس کو واٹس ایپ ہم کر چکے ہیں کہ نیچے کا جو لیول ہے 41,800 سے نیچے کا، وہ آپ کا شارٹ ٹرم کے لیے، یعنی ویکلی اور منتھلی بیسس کا، جو یہ ابھی مہینہ جا رہا ہے اکتوبر کا اور مڈ آف نومبر کے لیے، یہ آپ کا سٹاپ لاس ہے۔ یعنی بہت ہی کم 500-300 پوائنٹ کا ہی نیچے آپ کا سٹاپ لاس ہے 41,800 کا۔ اگر یہ بریک ہوتا ہے تو جو شارٹ ٹرم کے لیے آپ نے بائنگ کی ہے وہ ایک دفعہ سیل کر لیں گے۔ اسی طرح سیم بریک آؤٹ بتا چکے ہیں 42,600 سے اوپر
जैसे ही ट्रेड करना शुरू कर गए तो हम शॉर्ट टर्म में बहुत क्विक तेज़ी से वॉल्यूम भी ऐड होंगे और हम तेज़ी देख सकते हैं। इसमें जो सेक्टर हैं वो टेक्नोलॉजी जैसे कई एक साल से सर फहरिस्त है और ऊपर जा रहा है। इसी तरह उसका साथ देंगे सीमेंट सेक्टर और स्टील। उसके बाद बाकी जो सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल है, उसकी ख़बर भी आप लोगों के सामने गुजरी होंगी, जो तकरीबन 20 रुपए पर यूनिट फिक्स किया गया है। और जो मीटिंग्स होंगी इनकी तो प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी और बाकी फाइनेंस मिनिस्टर जो है डार साहब वो आए हैं उनके साथ भी। तो इसी तरह ये सेक्टर हो गया। फिर फार्मास्यूटिकल जैसे अभी मैंने बताया, ऑटो सेक्टर में जो है ना कहाँ पे पाएँ, तो वो साथ साथ हम तमाम अपने क्लाइंट्स को गाइड करते रहते हैं। और डेली बेसिस पे जो हम अलर्ट भेजते हैं उसकी रात को फिर स्टडी होती है, नेक्स्ट डे की फिर स्टडी जो होती है। तो इंशाल्लाह अगर इसी तरह आप लोग प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आप लोगों का फ़ायदा भी होगा, आप लोग का रिस्क भी मिनिमाइज़ होगा, आप लोग प्रॉफिट में आएंगे। तो जब साल गुजरता है तो आप एक हेल्दी अमाउंट में प्रॉफिट में होते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी कंपनी जो है वो अपनी तरफ से कोई डिविडेंड या बोनस जो है वो नहीं दिया करती, वो एक्स हो जाती है। एक एग्जांपल दूंगे, जैसे 100 रुपये पे आज के दिन अगर कोई स्पॉट है क्लोज हो रहा है, इसने 10 रुपये डिविडेंड दिया हुआ है, तो कल के दिन में वो 90 पे ओपन होगा। तो ये हमारा काम है कि हम किस तरह आपको गाइड करें कि आपकी कैपिटल गेन जो है ना हो कि आए ये 10 रुपये जो है ना अभी आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, या जो है इसके बाद जब एक्स होगा तो ये रिबाउंड होगा भी या नहीं। जैसे आपके सामने फिरोज़ को देख लें, इसी तरह सिस्टम को देख लें जो 900 पे था और एक्स हुआ फिर कहाँ नीचे आया। अटक पेट्रोलियम को देख लें, नो डाउट ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो ये है इरफान साहब, जैसे हमारे साथ अगर ये ज्वाइन करेंगे जो ऐसे जो देखने वाले जिनके अभी तक अकाउंट ओपन नहीं हुए, तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर सबके साथ है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 030 पेंटा 5630, यानी 0305555630। जी इरफान साहब। अच्छा सना साहब, मेरा क्वेश्चन है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड। तो इसमें अभी न्यूज़ आ रही है कि इसकी कुछ एलसीज वगैरह गवर्नमेंट खोलने जा रही है, और दूसरा ये है कि रुपया भी डॉलर के मुकाबले में गेन कर रहा है। तो इसका आप क्या प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। बाकी सेक्टर सीमेंट टेक्नोलॉजीज तो काफ़ी ऊपर चले गए हैं, लेकिन ऑटो सेक्टर ने भी परफॉर्म नहीं किया। लेकिन ये जो एक दो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इनका आप ख़ास तौर पे पाकिस्तान सुजुकी और एच कार के जो शेयर्स हैं इन पे क्या इफ़ेक्ट देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इरफान साहब बिल्कुल आपने सही कहा। और इसमें जैसे इंडस मोटर है, वो भी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, डिविडेंड यील्ड इसकी बेहतर है। पाक सुजुकी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव रेट्स पे आए हुए हैं। गंदारा जो है GHNI है, इवन GHNL है। इसके अलावा बाकी जो होंडा कार है, तो वो सारे जो है ये काफ़ी बेहतर हैं। तो ये इसमें बाइंग जो है वो बिल्कुल बन सकती है। और जैसे बताया कि मार्केट एक दफ़ा 42,600 से ऊपर होगी, तो इसमें भी ऑटो सेक्टर में भी रैली देख सकते हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा है जी। जिस तरह सना साहब सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी क्यूरीज आ रही हैं, काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया है, लेकिन कुछ शेयर्स हैं, सर डीजी खान है और इस तरह के एक दो शेयर्स हैं जिनमें अभी ब्रेकआउट्स नहीं हम देख रहे। तो गोइंग फॉरवर्ड सीमेंट सेक्टर का आप उसमें थोड़ा सा गाइड कर दें कि कौन से स्टॉक्स हैं और ओवरऑल सेक्टर का क्या प्रोस्पेक्ट है? इरफान साहब माशाल्लाह आप भी काफ़ी नज़र रखते हैं मार्केट पे। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी स्टॉक जो है वो ख़ुद से नहीं चलता, चाहे वो फंडामेंटली कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो। सीमेंट सेक्टर में बेतहाशा स्टॉक्स चूँकि हैं, कंपनीज लिस्टेड हैं माशाल्लाह, तो इसमें सर फहरिस्त जो है वो लकी सीमेंट है। और उसके बाद पायनियर सीमेंट जो है और चिराट सीमेंट, इसके फिर वो साथ देंगे मैपल लीफ सीमेंट, वो बेहतर है। और उसके साथ साथ फिर बाकी जो है ना सेक्टर जैसे स्टील वगैरह वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। जो ब्रेकआउट हमने इंडेक्स वाइज बताया ये क्रॉस हो तो उसमें फ्रेश एंट्री हमारे सुनने वाले फिर ले सकते हैं। थैंक यू। इसी तरह सना साहब WTL से रिलेटेड काफ़ी एक्टिविटी हमारे पास क्यूरीज आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा अभी शेयर चला था, लेकिन फिर उसमें हमने देखा कि दोबारा से नेगेटिव प्राइस एक्शन आ गया। तो इसमें आपकी क्या रिकमेंडेशन है?
WTL का जो परसेंट वाइज उसमें अच्छा खासा पेनी स्टॉक्स में बहुत सारे फहरिस्त है, और पिछले अगर 2 साल की आप हिस्ट्री निकाल के देखें तो ये वॉल्यूम लीडर्स में रहा है, टॉप 5 में। अब जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि 1 रुपये 10 पैसे और 1 रुपये 20 पैसे पे काफ़ी देर रहा, और इसमें नेस्डेक के हवाले से जो खबरें आई कि जी इसकी जो दूसरी कंपनीज हैं वो लिस्टेड होने जा रही हैं, क्योंकि इसको इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन स्पेकुलेशन में सम टाइम जो है वो एक ही दिन 2 दिनों में इन्होंने 70% गेन किया। जहाँ तक आपका सवाल है कि इसमें हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या देखते हैं, वो तो खैर टाइम टू टाइम अपने व्हाट्सएप के ज़रिए हम अपने क्लाइंट्स को गाइड करते भी हैं, लेकिन जो हमारे यूट्यूब पे देखने वाले हैं जो हमारे साथ अभी अकाउंट नहीं है, उनके लिए मैं ये कह दूं कि इसमें परसेंट वाइज आप काफ़ी ज़्यादा गेन कर सकते हैं। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क नहीं होता, तो ये 1 रुपये और 1 रुपये 30-40 पैसे के दरमियान ये सब बाइंग जोन है। और ये याद रखें कि जब भी ये 2 रुपये से ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो 1 रुपये 60-70 पैसे, जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, और ऊपर के लेवल पे फिर 3 रुपये पे पहुँच के वो फिर साथ साथ हम इंशाल्लाह गाइड करते रहेंगे अपने क्लाइंट्स को भी, और जो हमारे सुनने वाले हैं जो हमारे साथ अकाउंट नहीं है उनको ये है कि ये काफ़ी इसमें मोर देन 500-600% इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी गेन है, लेकिन साथ साथ लेके चलना होता है। जैसे मैंने किसान की और बीज की और फसल की एग्जांपल दी, उसको उसी तरह लेके चलना होगा जी। थैंक यू वेरी मच नासा फॉर योर इनपुट। इंशाल्लाह व्यूअर्स, हम सनाउल्लाह खान साहब के साथ एक लाइव सेशन भी बहुत जल्द करने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि जो लाइव मार्केट में इनकी इनपुट्स होती हैं, ये किस तरह अपना जो है एनालिसिस उस पर कैलकुलेट होता है और किस तरह हम क्लाइंट्स को गाइड करते हैं। तो ये एक लाइव इन्वायरमेंट में इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो फॉर दोज क्लाइंट्स जो कि इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहें, तो प्लीज़ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेजिए ताकि हम उस जूम सेशन के लिए आपको उसमें ऐड कर लें, और उसके बाद इंशाल्लाह ये लाइव सेशन का सिलसिला भी हम बहुत जल्द शुरू करेंगे जिसमें हम आपको लाइव मार्केट्स की अपडेट भी देंगे। सो थैंक यू वेरी मच ना साहब फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट, एंड वी होप कि जो हम ये एफर्ट कर रहे हैं ये आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच एक व्यूअर्स। अल्लाह इरफान हाफ़िज़। साहब जी बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारे सुनने वालों का भी। एक जो छोटी सी बात है, जो कि अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में या कोई भी बिजनेस ये अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह उसको लॉस नहीं होगा। जितने आपके अपने पैसे हैं, जैसे 10 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट है स्टॉक में, तो उसी में रहें। फ्यूचर में या लेवरेज पे अगर आप बहुत हाई लेवरेज पे काम करेंगे तो कभी भी आप प्रॉफिट नहीं करेंगे और आप पैनिक में आ सकते हैं, और आप और आपकी फैमिली उससे डिस्टर्ब हो सकती है। इसको गुरेज किया करें। इसका तरीका ये होता है कि 10 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट है और आपने 15 रुपये पे पहुंच गए हैं, तो वो जो ऊपर 5 रुपये के हैं उसको अगर आप लेवरेज में करते भी हैं, और जैसे अगर आप लॉस होते हैं और आपका अपने अपने ही कैपिटल पे वापस आते हैं, फिर लेवरेज पे काम ना किया करें। थैंक यू। thank you very much NASA for your time. Thank you very much viewers. With this note we end our today's video. Please do remember to subscribe to our channel, और अगर आपकी किसी किस्म की क्यूरीज कमेंट सजेशन हो तो ये जो बिस्ना साहब ने आपका नंबर बताया है आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के जो नंबर है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम आपको टाइमली बेसिस पे आपका तमाम क्यूरीज का जवाब दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।